بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ غزہ میں پولیو مہم کے لیے لڑائی میں 3 دن کا وقفہ، حماس اور اسرائیل نے اتفاق کر لیا، WHO کا اعلان۔ پولیو مہم 1 ستمبر سے شروع ہوگی، 6,40,000 بچوں کو خوراک پلائی جائے گی۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں حماس کمانڈر کو ہلاک کر دیا، ہر طرف تباہی کے نظارے۔ اسرائیلی فوج خان یونس اور دیر البلح سے پیچھے ہٹ گئی، ملبے سے لاشیں برآمد، گھر کھنڈر میں بدل گئے۔ ایران خلیجی ملکوں کے ساتھ تعاون کا نیا مرحلہ شروع کرے گا، وزیر خارجہ عباس ارغچی نے کی GCC سیکریٹری جنرل سے بات چیت۔ لیبیا سینٹرل بینک کے چیف ملیٹنٹس کی دھمکیوں کے بعد ملک سے فرار، بینکنگ سرگرمیاں ٹھپ ہو گئیں۔ انڈیا اور پاکستان طوفان اسنا سے نمٹنے کے لیے تیار، کئی دوحہ میں پہلی بار اگست کے مہینے میں بحر عرب میں طوفان۔ پاکستان کے کراچی اور انڈیا کے گجرات میں بارش اور سیلاب، سکولز بند، مچھیروں کو وارننگ۔ پاکستان کے ساتھ بلا روک ٹوک بات چیت کا دور ختم ہو چکا، اسلام آباد کی طرف سے مودی کو دعوت کے دوسرے دن جے شنکر کا بیان۔ شیواجی مجسمہ ٹوٹنے کے لیے مودی نے معافی مانگی، اسمبلی الیکشن سے پہلے مہاراشٹر میں مراٹھا راجا پر سیاست گرم۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ WHO کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج اور حماس نے لڑائی میں 3 دن کے وقفے سے اتفاق کیا ہے تاکہ غزہ کے 6,40,000 بچوں کو پولیو کی خوراک پلائی جائے۔ فلسطین میں WHO کے نمائندہ رک پیپر کون نے بتایا کہ اس انسانی وقفے کا آغاز سینٹرل غزہ میں اتوار کو ہوگا اور 3 دنوں تک 8 یا 9 گھنٹے اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد ساؤتھ غزہ اور پھر نارتھ غزہ میں بھی وقفہ ہوگا۔ WHO کے نمائندے نے بتایا کہ 10 سال سے کم عمر 6,40,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ UN ایجنسیوں اور غزہ کی وزارت صحت کے 2,000 سے زیادہ ہیلتھ ورکرز کو اس مہم کو پورا کرنے کے لیے اور زیادہ دنوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ وقفہ جنگ بندی نہیں ہے، لیکن ایجپٹ اور قطر کے عہدیدار اب بھی جنگ بندی کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس دوران حماس نے کہا کہ وہ عالمی اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ WHO نے کہا کہ ستمبر کی 1 تاریخ سے پولیو مہم سے پہلے غزہ میں 1.2 ملین پولیو خوراکیں پہنچا دی گئی ہیں۔ UN سیکیورٹی کونسل میں غزہ میں پولیو وائرس کے ابھرنے کے خطروں پر غور کے ساتھ ساتھ پولیو ویکسین مہم فوری مکمل کرنے پر زور دیا گیا۔ کونسل کے ڈیلیگیشن نے UN ورکرز پر بمباری کی مذمت کی۔ انڈر سیکریٹری ہیومن افیئرز جائز سویا نے کہا کہ غزہ کی صورتحال انتہائی نازک ہے، شہری بھوکے پیاسے اور بے گھر ہیں، لوگ ایک انسانی بحران میں گھر چکے ہیں۔ کئی ارکان نے پولیو مہم پرامن طریقے سے مکمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے مغربی کنارے میں حماس کے ایک مقامی کمانڈر کو ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ حساس شہر جنین میں پیش آیا۔ اسرائیلی فوج نے مسلسل تیسرے دن مغربی کنارے میں آپریشن کیے۔ وہ 2005 کے بعد سے مغربی کنارے میں سب سے بڑے فوجی آپریشن کا شکار ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ بارڈر پولیس نے حماس کمانڈر وسیم اعظم کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وسیم جنین میں حماس کے چیف تھے اور علاقے میں فائرنگ کے کئی واقعات میں شامل تھے۔
एक दिन पहले ही एक और मुजाहिमती कमांडर अबू शुजा को बाज़ दूसरों के साथ हलाक किया गया था। इसराइली ओहदेदारों ने बताया कि हमास के 2 दूसरे बंदूक बरदारों को एक ड्रोन के जरिए हलाक किया गया जो फरार की कोशिश कर रहे थे। इसराइली फौज ने बताया कि जिस गाड़ी में वो लोग फरार हो रहे थे उसे निशाना बनाया गया और उस गाड़ी के पास से भारी रकम भी बरामद की गई। हमास ने इस खबर पर कोई तबसरा नहीं किया है। बरतानिया ने मगरबी किनारे में इसराइली फौज के ऑपरेशन पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। जॉर्डन ने भी ऑपरेशन की मजम्मत करते हुए कहा कि इसके नतीजे में बड़े पैमाने पर फलस्तीनी बेघर हो सकते हैं और नकल मकानी कर सकते हैं। मगरबी किनारे में इसराइली धावों की वजह से हर तरफ तबाही के नजारे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि 7 अक्टूबर के बाद से इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में 10,300 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। गाजा में इसराइली फौज के हमले जारी हैं। पिछले 24 घंटों में 50 फलस्तीनी जान बहक हुए और कई जख्मी हुए। इसराइली फौज ने गाजा के खान यूनुस से पीछे हटने का फैसला किया है। 22 दिनों तक इस इलाके में ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन के नतीजे में भारी तबाही हुई। इसराइली फौज के बाहर जाने के बाद कम से कम 9 लाशें बरामद की गईं। इसराइली फौज ने दावा किया कि उसने साउथ गाजा में 3 हफ्ते के ऑपरेशन के दौरान 250 फलस्तीनी बंदूक बरदारों को हलाक किया और 6 किलोमीटर की सुरंगें तबाह की। इस ऑपरेशन के दौरान खान यूनुस और दीर अल बला को निशाना बनाया गया। मगाजी में ताज़ा कार्रवाई में एक फलस्तीनी जाँ बहक हुआ। दीर अल बला में भी फलस्तीनी अपने घरों को वापस हुए, लेकिन वो जब वापस लौटे तो देखा कि वहां सिर्फ तबाही के सिवा कुछ नहीं है। जबालिया में इसराइली फौज के एक हमले में 4 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। सेंट्रल गाजा में हवाई हमले जारी रहे। कई लोगों के मरने और जख्मी होने की खबर है। मरने वालों और जख्मियों में बच्चे भी शामिल हैं। हैरत की बात तो यह है या सितम ज़रीफ़ी की बात तो यह है कि बच्चों को पोलियो की खुराक तो पिलाई जा रही है, इसके लिए लड़ाई भी रोक रही है, लेकिन बच्चों पर बम बरसाए जा रहे हैं, इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। ईरान ने खलीज फारस के मुल्कों के साथ ताउन के नए मरहले पर जोर दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल जसीम मोहम्मद अल बुदैवी से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए कहा कि ईरान जीसीसी मुल्कों के साथ दोस्ताना और भाइयों जैसे ताल्लुकात चाहता है। ईरानी वजीर ने कहा कि ईरान और जीसीसी के दरमियान ताल्लुकात आपसी समझबूझ और ताउन के नए मरहले में दाखिल होने चाहिए। इस मौके पर जीसीसी ओहदेदार ने वजीर खारजा बनने पर अब्बास अरग़ची को मुबारकबाद दी और तेहरान और काउंसिल के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर दिया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान ने वादा किया है कि उनकी हुकूमत पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात को अहमियत देगी। पेज़ेशकियान ने हाल ही में एक आर्टिकल लिखते हुए कहा था कि मेरी हुकूमत में इस मसले को अहमियत दी जाएगी। लीबिया सेंट्रल बैंक के चीफ मिलिटेंट्स की धमकियों के बाद मुल्क से फरार हो गए हैं। त्रिपोली से काम करने वाली सदारती काउंसिल ने इस दौरान नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तकर्रुर किया है। मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद से लीबिया में कोई मरकजी हुकूमत नहीं है। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि मिलिटेंट्स धमकी दे रहे हैं कि अगर बैंक अहदेदार काम करते रहेंगे तो उनके बच्चों का अगवा कर लिया जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ लीबिया करोड़ों बिलियन डॉलर्स पर कंट्रोल रखता है। ये रकम तेल की दौलत से जमा हुई है। 2011 में नाटो की मदद से मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी को हटाया गया था। इस दौरान बैंकिंग सरगर्मियां ठप होने की खबर है। के सिलसिले को अमेरिका में जैसे जैसे सदारती इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। 5 नवंबर को सदारती इलेक्शंस में मौजूदा नायब सदर और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस का मुकाबला साबिक सदर और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होगा। इस दौरान दोनों पार्टियों के बीच अरब और मुस्लिम वोटर्स के लिए दौड़ शुरू हो गई है। फलस्तीन का मसला इलेक्शंस में खासतौर पर मुस्लिम वोटर्स में अहमियत अख्तियार कर गया है। शिकागो कन्वेंशन के दौरान फलस्तीनियों के हामियों ने मुजाहरे किए थे। अमरीकी इलेक्शंस में अरब और मुस्लिम अमेरिकन की एक बड़ी तादाद वोट देने वाली है। हालिया अरसे में अरब और मुस्लिम वोटर्स की तादाद में काफी इजाफा हुआ है। 2023 में बाज अरब और मुस्लिम अमेरिकन लीडर्स ने सदर बाइडेन के खिलाफ एक मुहिम भी शुरू की थी। 10 महीने से जारी गाजा जंग में अमरीका की बेअमली की वजह से अरब और मुस्लिम वोटर्स काफी नाराज हैं। रशिया ने यूक्रेन के एक F-16 फाइटर जेट को तबाह कर दिया है। हाल ही में अमेरिका और दूसरे मगरबी मुल्कों ने यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स दिए थे। बताया गया कि पीर को F-16 को मार गिराया गया। इस वाक़े में पायलट भी मारा गया। इस महीने के शुरू में F-16 फाइटर जेट्स दिए जाने के बाद से ये पहला नुकसान है।
पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मोहसिन नकवी ने कहा है कि रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। नकवी ने कहा कि बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्द सरगर्मियां एक साजिश का नतीजा है जिसका मकसद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट को मुतासिर करना है। नकवी ने कहा कि इन हमलों के मास्टरमाइंड कौन है इससे सभी वाकिफ हैं। हमला करने वाले दहशतगर्दों की पहचान कर ली गई है। पाकिस्तानी फौज के ऑपरेशन में इस दौरान 5 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। 26 अगस्त को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर अलहदगी पसंदों ने कार्रवाइयां की थीं जिनमें दर्जनों लोग हलाक और जख्मी हुए थे। इनमें फौजी भी शामिल हैं। इन हमलों की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की थी। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बिला रोक टोक बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। उन्होंने ये बात साफ की कि हर अमल का नतीजा होता है। जयशंकर ने नई दिल्ली में एक किताब की लॉन्चिंग के दौरान ये बात कही। एक दिन पहले पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अक्टूबर में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के लिए इस्लामाबाद दौरे की दावत दी थी। जयशंकर ने कहा कि इंडिया पाकिस्तान के साथ बातचीत के हवाले से बेअमल नहीं है। इंडिया हालात पर रिएक्ट करता है, चाहे वो मुस्बत हो या मनफी। उन्होंने बांग्लादेश के बारे में भी ख्यालात का इजहार किया और कहा कि इंडिया पड़ोसी मुल्क की हुकूमत वक्त के साथ मिलकर काम करेगा। मालदीव के साथ ताल्लुकात के बारे में उन्होंने कहा कि इन रिश्तों में उतार चढ़ाव आया है। अफगानिस्तान के साथ रिश्तों के बारे में जयशंकर ने कहा कि अवाम से अवाम के ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि हर मुल्क को पड़ोसियों के साथ चैलेंजेस का सामना होता है। इंडिया और पाकिस्तान एक रेयर तूफान से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। इस तूफान के असर में सरहदी शहरों, कस्बों और देहातों में बारिश हो रही है। अहदेदारों ने स्कूल्स बंद कर दिए हैं और हजारों लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया है। मौसम अहदेदारों ने बताया कि अरेबियन सी में एक खतरनाक समंदरी तूफान पैदा हुआ है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची और गुजरात के कच्छ जिले में स्कूल्स बंद कर दिए गए। अहदेदारों ने बताया कि दोनों मकामात पर तेज बारिश हो रही है। अगस्त के महीने में इस तरह का समंदरी तूफान एक अनोखी बात है। कई दौहों में ऐसा पहला मौका है जब अगस्त के महीने में इस तरह का तूफान आया है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के चीफ अशोक कुमार दास ने यह बात बताई। गुजरात में तूफान के असर में बारिश की वजह से कम 3 लोग हलाक हुए हैं। इस तरह एक हफ्ते में बारिश से मुताल्लिक हादसात में गुजरात में मरने वालों की तादाद 31 हो गई। अहदेदारों ने पिछले 24 घंटों में गुजरात के 10 जिलों से 9000 लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया है। 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई है। शहरियों से कहा गया है कि वो घरों में ही रहें। दोनों मुल्कों में वार्निंग दी गई है कि वो समंदर में ना जाएं। कराची में 147 मिलीमीटर बारिश हुई। शहर के मेयर मुर्तजा वहाब ने शहरियों से कहा कि वो गैर जरूरी सफर ना करें। इस तूफान को असना का नाम दिया गया है। मरकजी हुकूमत ने तालीमी साल 2024-25 से MBBS की 4 सीटें दहशतगर्दी से मुतासर खानदानों के लिए महफूज कर दी हैं। ये सीटें दहशतगर्दी की सरगर्मियों से मुतासर लोगों के बच्चों और पार्टनर्स के लिए महफूज होंगी। वजारत दाखिला ने हाल ही में इस सिलसिले में पहल की थी। दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के एंटी सिख राइट्स के सिलसिले में कांग्रेस लीडर जगदीश टाइटल के खिलाफ इल्जामात वज़ा करने का हुक्म दिया है। इस केस का ताल्लुक ठाकुर सिंह, बादल सिंह, गुरचरण सिंह की हलाकत से है। ये वाक़या दिल्ली के गुरुद्वारा पुल बंगश के बाहर पेश आया था। अदालत ने कहा कि जगदीश टाइटल के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुनासिब सबूत मौजूद हैं। 31 अक्टूबर 1984 को उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की हलाकत के बाद सिखों के खिलाफ दिल्ली और दूसरे मकामात पर बड़े पैमाने पर फसादात हुए थे जिनमें हजारों सिख हलाक और जख्मी हुए थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी के मुजस्समे के टूटने पर माफी मांगी है। मोदी ने पालघर में कहा कि 2013 में बीजेपी ने उन्हें जब वज़ीर आज़म के ओहदे का उम्मीदवार बनाया था, उन्होंने सबसे पहला काम यह किया था कि वो रायगढ़ में शिवाजी के मुजस्समे की समाधि पर गए थे और एक नया सफर शुरू किया था। मोदी ने कहा कि शिवाजी उनके लिए सिर्फ एक नाम नहीं है। मोदी ने कहा कि आज वो मेरे भगवान छत्रपति शिवाजी के आगे आए हैं
ہماری قدریں الگ ہیں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو بھارت ماتا کے عظیم سپوت اور اس دھرتی کے سپوت ویر ساورکر کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ لوگ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ لوگ عدالتیں جانے اور لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہے. ان کا اشارہ اپوزیشن پارٹیوں کی طرف تھا. حال ہی میں شیوا جی کا ایک 35 فیٹ کا مجسمہ ٹوٹ گیا تھا جس کا افتتاح کچھ مہینے پہلے وزیر اعظم مودی نے کیا تھا. اس پر مہاراشٹر میں خوب سیاست ہو رہی ہے, بیان بازی جاری ہے اور یہ ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے. مہاراشٹر میں کچھ مہینے بعد الیکشنز ہونے والے ہیں اور شیوا جی مہاراشٹر کی ایک اہم شخصیت ہیں. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. غزہ میں پولیو مہم کے لیے لڑائی میں 3 دن کا وقفہ. حماس اور اسرائیل نے اتفاق کر لیا. WHO کا اعلان. پولیو مہم 1 ستمبر سے شروع ہوگی. 6,40,000 بچوں کو خوراک پلائی جائے گی. اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں حماس کمانڈر کو ہلاک کر دیا. ہر طرف تباہی کے نظارے. اسرائیلی فوج خان یونس اور دیر البلح سے پیچھے ہٹ گئی. ملبے سے لاشیں برآمد. گھر کھنڈر میں بدل گئے. ایران خلیجی ملکوں کے ساتھ تعاون کا نیا مرحلہ شروع کرے گا. وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کی GCC سیکریٹری جنرل سے بات چیت. لیبیا سینٹرل بینک کے چیف ملیٹنٹس کی دھمکیوں کے بعد ملک سے فرار. بینکنگ سرگرمیاں ٹھپ ہو گئیں. انڈیا اور پاکستان طوفان اسنا سے نمٹنے کے لیے تیار. کئی دوحہ میں پہلی بار اگست کے مہینے میں بحر عرب میں طوفان. پاکستان کے کراچی اور انڈیا کے گجرات میں بارش اور سیلاب. سکولز بند. مچھیروں کو وارننگ. پاکستان کے ساتھ بلا روک ٹوک بات چیت کا دور ختم ہو چکا. اسلام آباد کی طرف سے مودی کو دعوت کے دوسرے دن جے شنکر کا بیان. شیواجی مجسمہ ٹوٹنے کے لیے مودی نے معافی مانگی. اسمبلی الیکشن سے پہلے مہاراشٹر میں مراٹھا راجا پر سیاست گرم. یہ تھی آج کی خبریں. شیڈول آف راسک کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.